Hello, everyone. Hello, my viewers, and to all my wonderful students. Guys, as usual, I am before you with the today's newspaper, The Hindu, dated September 7th, that is on Thursday, right? A very happy Janmashtami to all of you. The first news on the front page is engagement with ASEAN is an important pillar of India's Act East policy, says Narendra Modi. Indian Prime Minister Narendra Modi. Yesterday, he flew for ASEAN, and Narendra Modi has clearly said that ASEAN is an important pillar of India's Act East policy. And in fact, today he also said that the 21st century will be ours, will be the century of ASEAN. 20th ASEAN India Summit एंड 18th ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता. अभी जकार्ता में सारा चीज हो रहा है. एज ए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, he left for Indonesia to attend the 20th ASEAN India Summit and 18th East Asia Summit in Jakarta. Prime Minister Modi will meet with leaders of the 10 ASEAN countries on Thursday, followed by the EAS meeting, which includes leaders of all ASEAN nations: Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia, and the US. While Mr. Modi will return immediately after the summit, so as to be in Delhi in time for the arrival of guests of the G20 summit. Many leaders present in Indonesia and Indonesian President Joko Widodo himself will also travel to Delhi on Friday. I am telling you about the Mr. Modi's statement that I look forward to discussing with ASEAN leaders the future, the contours of our partnership, which has now entered its fourth decade. Engagement with ASEAN is an important pillar of India's Act East policy. The comprehensive strategic partnership entered into last year has injected new dynamism in our ties. Narendra Modi has obviously he has given so much importance to the ASEAN dialogue, to the meeting with all the ASEAN leaders, right? The second important news is Supreme Court protects Editors Guild journalists from arrest. The Supreme Court, in an urgent interim order on Wednesday, protected the Editors Guild of India president and three senior journalists from arrest by the Manipur police for their ground report concluding bias by the local media in reporting the ethnic clashes. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और तीन सीनियर जर्नलिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे करके प्रोटेक्ट कर लिया, नहीं तो ये अरेस्ट हो जाते. इनकी गलती ये थी कि मणिपुर पुलिस से इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में ये बताया था, इन जर्नलिस्ट ने और एडिटर ने, कि वहां के जो लोकल मीडिया है वो एथनिक वायलेंस और एथनिक क्लैश में biased approach दिखा रही है. A three-judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud listed the case for a detailed hearing on September 11 and directed the Manipur police not to take any coercive action against them in the interregnum, meaning thereby कि 11 सितंबर को डिटेल्ड हियरिंग के लिए सीजीआई ने लिस्ट किया है मैटर को. 3 जज बेंच है, लेकिन इसके पहले 11 सितंबर तक तो ये तो अरेस्ट हो जाते, तो 11 सितंबर को डिटेल्ड हियरिंग के लिए रखा है. लेकिन उसके पहले मतलब आज ये कल मतलब 7 तारीख का न्यूज, मतलब 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देकर के उनको प्रोटेक्ट कर लिया कि मणिपुर पुलिस अभी कोई भी कोयर्सिव एक्शन नहीं इनिशिएट कर सकती है, इनको अरेस्ट नहीं कर सकती है.
11 तारीख को डिटेल्ड हियरिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा। नेक्स्ट न्यूज इज 40 इंजर्ड ड्यूरिंग protest over army barricade in Manipur. Security forces fired tear gas cells to disperse 10,000 protesters who turned up at two sites in Bishnupur. Some miscreants opened fire. मणिपुर में जो एथनिक क्लैश और वायलेंस चल रहा था वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी फिर से प्रोटेस्ट हो रहा था जिसमें कि किसी ने दे ओपन्ड फायर। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हर जगह पर, और उसमें क्या हो गया कि कहीं भी जब फायरिंग होने लगेगी तो कुछ लोग ऑफ कोर्स इंजर्ड हो जाएंगे, तो माहौल और खराब हो जाता है, माहौल और भी खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज पीएम प्राइम मिनिस्टर लिस्ट द डूज एंड डोंट्स फॉर मिनिस्टर्स ड्यूरिंग G20 समिट। प्राइम मिनिस्टर ने सारे मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं भारत के या फिर राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उन सब लोगों को डूज एंड डोंट्स बताया है G20 समिट के टाइम में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इज ready to hold polls as per legal provisions, says Chief Election Commissioner. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar with other election commissioners Anup Chandra Pandey and Arun Goyal, they said that they are ready to hold polls as per legal provisions, says CEC, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी देखिए कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज इज इसरो टीम विजिट्स JU जादवपुर यूनिवर्सिटी, टेक्स स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर स्टूडेंट्स डेथ। A two-member team from the ISRO visited Jadavpur University in Kolkata on Wednesday and took stock of the security measures on campus following the death of a first-year undergraduate student last month allegedly due to ragging. इसरो की टीम विजिट कर रही है जादवपुर यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया था न्यूज में कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आए दिन जादवपुर यूनिवर्सिटी हैज बिकम अ न्यू हॉट बैटल ग्राउंड। वहां पे कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी गोली चल जाती है, कभी बम चल जाता है, कभी रैगिंग होने लगता है, कभी कुछ और होने लगता है। तो यहाँ पे इसरो की टीम विजिट की है। अब ऐसे मैटर में इसरो की टीम क्यों विजिट की है, ये भी एक अलग मुद्दा है। नेक्स्ट न्यूज इज हाई कोर्ट orders reframing of policy on celebrating festivals on public roads. That is news is about the Bombay High Court. Traditions and cultures must evolve with changing times and changing demographics of the city, the Bombay High Court said on Wednesday, while directing the authorities to consider reframing its policy permitting celebration of festivals on public roads. बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस सुनील सुक्रे एंड फिरदौस पुनीवाला, दे सेड कि ट्रेडिशंस और कल्चर जो है वो चेंजिंग टाइम्स के साथ इवॉल्व करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। चेंजिंग डेमोग्राफिक के साथ इवॉल्व करना चाहिए। जब पॉपुलेशन नहीं था, जब सड़कें खाली रहती थी, तो आप कर सकते थे, लेकिन अब जहां इतना पॉपुलेशन है, अब वहां पर आप सारे फेस्टिवल को चाहोगे कि सड़क पर ही एंजॉय करें, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि इसके लिए सरकार को फिर से पॉलिसी को रीफ्रेम करना चाहिए अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स ऑन पब्लिक रोड्स। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनील सुक्रे एंड पूनीवाला इस मैटर को देख रहे थे, एंड दे एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न over the manner in which the policy regulating
celebration of such festivals has been framed. इसको देखा जाना चाहिए सारे पर्व त्योहार को। अब इसको किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए कि अब हिंदुओं का पर्व त्योहार आ रहा है तो कर दिए, या किसी और धर्म का पर्व त्योहार आ रहा है तो कर दिए। सारे धर्म अगर हो, रूल हो तो यूनिफॉर्म होना चाहिए कि सारे धर्मों के लिए होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट टारगेटिंग ओनली वन रिलीजन। Next one is Bose appoints officiating VC of another varsity amid row. West Bengal के गवर्नर has announced the new vice chancellor of another VC, of another varsity. जबकि मैं कल ही आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद ही बोला है कि हम वेतन रोक देंगे, हम फंड नहीं देंगे, हम फंड को ब्लॉक कर देंगे और हम राजभवन के बाहर धरना पर बैठ जाएंगे। और वो बोल रही है कि अक्यूजिंग हिम ऑफ इंटरफेयरिंग इन द स्टेट्स एजुकेशन सिस्टम। देखो, ममता बनर्जी एक ऐसी लेडी है जो कि कब किससे भिड़ जाएगी और किस तरह से यह अराजक हो जाएगी कोई नहीं कह सकता है। वेस्ट बंगाल में चीजें सही नहीं चल रही है राजभवन और सरकार के बीच में, और सेम चीज बिहार में है। बिहार में भी राजभवन और मुख्यमंत्री बिहार सरकार के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही है। कल तो बिहार में राज्यपाल जो विश्वनाथ आर्लेकर है, वो नीतीश कुमार की मौजूदगी में जो शिक्षा के सचिव है, अपर सचिव है, उनको डांट लगाई। उनको बोला कि आपकी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई कि आप बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 17 years after Mumbai train blast, no prosecutor appointed. Bombay High Court said that is this the way you are treating these appeals? There is no seriousness in the government's attitude to this issue. Even 17 years after the train blast in Mumbai, the Maharashtra government has not appointed a special public prosecutor to hear the appeals and confirmation cases. अब इसमें महाराष्ट्र में सारे पार्टी की सरकार रह गई है इस बीच में, चाहे वो अभी बीजेपी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, या पुरानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, चाहे वो एनसीपी शरद पवार की हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। ये सारे 17 साल में ये सारे पार्टी जो भी महाराष्ट्र में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारे लोग सरकार में रहे। और देखिए कि कितना बड़ा मुद्दा है। 17 साल हो गए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के, और अभी तक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हुआ है उस केस में। और सोचिए कि 11 जुलाई 2006 की घटना है जिसमें 189 जैसा मैमुथ टोटल, बहुत बड़ा टोटल है, 189 लोग मारे गए एंड इंजरिंग सेवरल अदर्स। इसके बाद भी बताइए अभी तक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हुआ है। ऑन वेडनेसडे अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस नितिन सांबरे एंड राजेश पाटिल was informed that the state government has yet to appoint a SPP, special public prosecutor, to appear in the hearing and therefore sought an adjournment. बताइए, तभी डिवीजन बेंच ने कहा कि is this the way you are treating these appeals? There is no seriousness in the government's attitude to this case, and this is rightly so also. 17 साल is a long duration, long interval, और इतना साल में आप वो भी इस तरह के एक टेरर अटैक में, मुंबई ब्लास्ट और टेरर अटैक, और 189 लोगों की जानें चली गई, एंड यू आर दिस reckless attitude that you are having, irresponsible attitude that you are having. Next is India versus Bharat debate orchestrated by BJP. ये टीएमसी के सीनियर लीडर अभिषेक बनर्जी, जो कि जिनकी बुआ है ममता बनर्जी, इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जान करके इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट शुरू किया है ताकि प्राइस राइज, कम्युनल टेंशन, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बेरोजगारी से
इन सारे मुद्दे से ध्यान को भटकाया जाए। अमित शाह टू विजिट बिहार ऑन September 16 टू एड्रेस पब्लिक मीटिंग। हमारे यशस्वी माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह बिहार आने वाले हैं। 16 सितंबर को ये पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे और ये 6वीं विजिट है अमित शाह की इस साल में। और इसके बाद ये लोकसभा प्रवास प्रोग्राम चल रहा है अमित शाह का। और आप जानते हैं कि अमित शाह इज अ वेरी वर्काहोलिक पर्सन और ही इज ऑलवेज इन द बीजेपी इज ऑलवेज इन द इलेक्शन मोड। ओनर्स ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इज ऑन द एलजी। दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है हमारे और एलजी के बीच में, उसकी जिम्मेवारी एलजी के ऊपर है और उनकी जिम्मेवारी है कि डिस्प्यूट को खत्म करें। सनातन धर्मारो केसेस फाइल्ड अगेंस्ट बीजेपी आईटी सेल चीफ अयोध्या सीयर इन तमिलनाडु। बताइए इससे गलत क्या हो सकता है? एक तो सनातन धर्म के बारे में तुम गलत बयानबाजी कर रहे हो यार। सनातन धर्म तो वो है जिसका ना आदि है ना अनंत है ना अंत है। सनातन धर्म सैकड़ों हजारों साल पहले से चल रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, वो सनातन धर्म है। और बताइए, एक तो आपका बेटा, बौराहा बेटा, उस तरह का बयान देता है और ऊपर से जब उसके अगेंस्ट में रिएक्शन दिया जाता है तो आप तमिलनाडु में उनके अगेंस्ट में केस कर देते हो। तो तमिलनाडु तो भैया एक राज्य है, आपको भी तो तमिलनाडु से बाहर निकलना है, आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया भारत इशू रेज टू मिसलीड पीपल सेज मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस फॉर्म्स 8 पैनल्स फॉर इलेक्शन राजस्थान असेंबली इलेक्शन। मैंने पहले भी बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज फिर से बोला है कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के साथ में कि हम लोग 8 पैनल्स बनाएंगे राजस्थान असेंबली इलेक्शन में। और सीएम अशोक गहलोत एंड हिज फॉर्मर डिप्टी सचिन पायलट हैव बीन मेड मेंबर्स ऑफ कोर कमिटी एंड द कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाया गया है। नेक्स्ट इज won't let India block seat sharing talks become media spectacle। समाजवादी पार्टी के लीडर ने बोला है। हाई, इसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं। हाई कोर्ट जंक्स प्ली फॉर प्रोब इनटू फंड्स यूज्ड ड्यूरिंग शिंदे रैली। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे dismissed a plea seeking probe into the funds used by the Chief Minister Eknath Shinde led Shiv Sena during a Dasara rally in October 2022 कि कितना पैसा लगा था दशहरा 2022 के रैली में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का, उसको डिसमिस कर दिया है हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय एंड जस्टिस आरिफ डॉक्टर was hearing a PIL petition filed by one Deepak Jagdev alleging that rupees 10 crore was used by the chief minister for holding the rally and therefore sought a probe into it। दीपक जगदेव ने केस PIL फाइल किया था और हाईकोर्ट से बोला था कि इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए दशहरा रैली पे, तो इस पे इसका खर्च का ब्यौरा कहां से पैसा आया। लेकिन इसको डिसमिस कर दिया डिवीजन बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस उपाध्याय साहब भी थे, बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज मे नॉट बी फिजिबल टू रिलीज कावेरी रिवर वाटर आफ्टर September 12। कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है, कर्नाटक की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि सितंबर 12 के बाद कावेरी के वाटर, कावेरी रिवर का पानी रिलीज करना, छोड़ना हमारे लिए फिजिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज, और कुछ ऐसा न्यूज इस पेज पे मुझे दिख नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले पन्ने पर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, a statement which has been given by
sorry, a statement which has been given by Narendra Modi himself, that is, Constitution does not allow abuse of any religion. Prime Minister Narendra Modi, when he was addressing a meeting of the Council of Ministers ahead of the G20 summit, then he said that कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को गाली देने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि सनातन धर्मा पे जो एक पागल आदमी, मैं उसे बोलूंगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी ने जो बयान दिया है, वहां के मुख्यमंत्री का बेटा, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी अलाउ नहीं करता है कि वो किसी के भी रिलीजन को गाली दे। और वहां के तो बीजेपी चीफ ने साफ साफ बयान भी दिया है कि सबसे पहले सनातन धर्म को खत्म करना है तो आपकी मां भी मंदिर जाती है, पहले उनको मंदिर जाने से रोको। सबसे पहला काम तो घर में ही है, वहीं से शुरुआत करो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड कि जो भी सनातन धर्म को लेकर के इशू आया है, इसमें जो भी मिनिस्टर्स हैं सोच समझ करके बयान दें और एग्जैक्ट आंसर दें। और भारत और इंडिया का जो बहस चल रहा है उसमें इन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एज वेल, मिस्टर मोदी रिपोर्टेडली सेड दैट ओनली ऑथोराइज्ड टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट शुड कमेंट ऑन द इशू। इसको लेकर के कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया अंग्रेज के आने के पहले इंडिया था भी नहीं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है दैट इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में ही लिखा गया, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। खैर पॉलिटिकल पार्टीज है तो इस तरह के बयानबाजी तो चलती रहेगी। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड लद्दाख हिल काउंसिल poll notification. Supreme Court on Wednesday set aside the August 5 notification of the election department of the Union Territory of Ladakh for the Hill Council polls and ordered issuance of a fresh election schedule within a week. इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। Next is blocking blacklisting of terrorists smacks of double speak. इंडिया ने बोला, India has told the United Nations Security Council that the blocking evidence-based proposals to blacklist globally sanctioned terrorists without providing justifications is uncalled for and smacks of doublespeak. This was a thinly veiled reference to China and Pakistan. Of course, yes, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा व्यवहार है कि आप ब्लॉक कर रहे हैं जो टेररिस्ट, जिसको सारे देश ने माना है कि वो एक टेररिस्ट आउटफिट है और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है, ग्लोबली सैंक्शन टेररिस्ट है। आप बिना जस्टिफिकेशन के आप उसके फेवर में आ जाते हैं और आप उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करते हैं, उसके ब्लैक लिस्टिंग को आप ब्लॉक करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप आतंकवाद के प्रति सीरियस हैं, आप आतंकवाद को मिटा देंगे? आप कैसे कर सकते हैं? आपका बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज दिखा रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो बोल नहीं रहे हैं। रेफरिंग टू चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान हाफिज सईद को नहीं ब्लैकलिस्ट करता है। हाफिज सईद एक ग्लोबल सैंक्शन, यूनाइटेड नेशन, ये अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड सबने माना है। हमारे यहां अटैक किया इंडिया में, ये लोग इसको मानने के लिए रेडी नहीं है। लग रहा है उनका दामाद है, ये उनका मौसा लग रहा है ये, तो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट इज अपोजिशन नॉट कंसल्टेड अबाउट स्पेशल सेशन, सोनिया गांधी ने कहा है। प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, इन्होंने बोला कि स्पेशल सेशन कॉल्ड फॉलोइंग ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट न्यूज इज नरेंद्र मोदी का एक आर्टिकल लिखा गया है दैट टेकिंग G20 टू द लास्ट माइल, लिविंग नन बिहाइंड।
new look of Delhi will leave a lasting impression on G20 guests. मिनिस्टर PW ये दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी के द्वारा कहा गया। होप सो दिल्ली और खूबसूरत बने, हमारे देश की राजधानी है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट इज G20 could pave way for crypto regulation, financial inclusion. Of course, this will be once again a very welcome news that crypto regulation के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। नेक्स्ट इज शशिकांत दास आस्क फिनटेक्स टू कीप गवर्नेंस अडॉप्ट सेल्फ रेगुलेशन। ऐसा कोई न्यूज है नहीं जो कि मैं बताऊं आपको इस पेज पे, बिजनेस पेज पे। पाकिस्तान सिक्योर्स अ कमांडिंग विन, हार्दिक हैज अ वेरी मैच्योर हेड ऑन हिज शोल्डर्स, सेज स्किपर रोहित। रोहित शर्मा ने कहा है कि हार्दिक पांड्या एक बड़ा ही मैच्योर्ड दिमाग का आदमी है और बड़े बैलेंस के साथ खेलता है। दिस वॉज ऑल दैट वी हैड in our session today, and I hope that you all have understood what I was trying to convey you, all the pointers that I wanted to convey to you. I wanted to explain to you all the Supreme Court orders, judgments, everything I have briefed to you, right? Guys, if you like our analysis, then do like it, share it, subscribe it along or with your friends, right? Thank you everyone for watching us on our YouTube channel. Jai Hind, Jai Shri Ram.